वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में G20 इजलास शुरू हो चुका है। तवक्कुआत क्या हैं? इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। और आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी लीडर से मुलाकातें कितनी नतीजा खेज साबित होंगी? We stand firmly behind Article 5, the mutual defense commitment. पाकिस्तान में चीनी जुबान सीखने का बढ़ता हुआ रुझान। मैंड्रिन इज अनदर यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये फ्यूचर करेंसी है। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। दुनिया की 20 अहम मईशतों के सरबराहान G20 इजलास के लिए जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में जमा हैं। 2 रोज़ा इजलास में जिन मौज़ूआत पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने की कोशिश की जाएगी उनमें सरमायाकारी और तजारत, इंसदाद दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीलियाँ और आलमी वबाओं जैसे मसाइल शामिल हैं। हैम्बर्ग में क्या सरगर्मियाँ जारी हैं, इसकी अपडेट के लिए हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा लुइस रमीरेज से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। लुइस, वेलकम टू व्यू 360। The highlights so far have been the protests. They have gained global attention. Did the authorities expect that they would be this intense? And how is the police response? Do people think it's heavy-handed or no? Well, there's a very big police presence. Certainly what we're seeing in terms of these protests is something that had been widely anticipated. German police brought in thousands of extra security forces to keep those riots at bay, to keep the protests peaceful. So far, we're in a second day of very intense protests. We've got vehicles set on fire today, water cannon being used against the demonstrators. The reason for choosing Hamburg is a very significant one. Angela Merkel's government very much wanted to portray the city. The city has a long history of dissent, a long history of protest, of self-expression, especially by left-wing groups like the ones demonstrating on the streets right now. And what Angela Merkel wanted to do is show that Germany and Europe remain open. This is in clear reaction to what many in Europe perceive as growing protectionism and isolationism, especially on the part of the United States. All right. So, इस वक्त भी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जर्मनी में प्रोटेस्ट किस किस्म के हो रहे हैं। बहुत ही शदीद मुजाहरे हैं और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगरचे पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी, अथॉरिटीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसे मुजाहरे होंगे और उनको पुरअमन रखने के लिए पूरी तैयारी भी की गई थी। और जहाँ तक हैम्बर्ग के मुंतखब होने का सवाल है G20 इजलास के होस्ट सिटी के लिए, तो उसकी वजह यह है कि एंगेला मर्कल भी जानती हैं और जर्मन्स भी जानते हैं कि ये वो शहर है जहाँ पे लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स और जहाँ पे डिसेंट यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और मुख्तलिफ मामलात पे खुल के बोलने का रिवाज है। तो वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहती थी कि जर्मन्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में भी कि अब अमेरिका में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिसेंट को कम अहमियत दी जा रही है और कम एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एंगेला मर्कल ने बहुत सोच समझ के हैम्बर्ग को होस्ट सिटी इस दफ़ा मुंतखब किया। Her relationship, Angela Merkel's relationship with Donald Trump, the President of the United States, is a frosty one. She welcomed leaders today. Who can she rely on for support, and what are the expectations that Germany has of this G20? Well, Angela Merkel's relations with Donald Trump have been rocky at best in these few months since his inauguration. Very, very deep differences between the two on issues of trade. The United States has criticized, Mr. Trump has criticized Germany for a bloated trade surplus. Merkel is very nervous about the Trump administration's posture on the issue of trade and on the threats of sanctions that could affect, in the matter of steel, that could very much threaten the German economy. A very big point of contention for Mrs. Trump and her relations with President Trump have to do with the issue of climate change. She has expressed great dismay at Mr. Trump's decision to pull the United States out of the Paris Climate Accord. So who can she rely on for support in this summit? They are going to certainly discuss it. There is a climate discussion today. Not sure and not likely that the U.S. position is going to change very much. But one very big thing that's happening here is that at the very least, there are face-to-face meetings happening between these leaders with very divergent views on most everything. And so that in itself is a big step. His meeting with Mrs. Merkel on Thursday tended to go well. They looked each other in the eye, they shook
hands, and that in general was seen as a positive sign. All right. So Angela Merkel और सदर ट्रंप की रिलेशनशिप, उनके जो ताल्लुकात हैं उनमें सर्द महरी पाई जाती है, और अगर देखा जाए तो इस वक्त कुछ बड़े बड़े इशूज़ हैं जिन पे अमेरिका और जर्मनी के दरमियान डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। क्लाइमेट चेंज उनमें से एक इशू है। उसके अलावा सदर ट्रंप ने कहा कि जर्मनी का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका की तरफ, तो जाहिर है कि जर्मनी उस पर तनकीद को भी नहीं पसंद करता। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू स्टील पे सैंक्शंस हैं। अमेरिका का ये कहना है कि चाइना की तरफ से जो सस्ता स्टील मुख्तलिफ मुल्कों को भेजा जाता है उसकी वजह से उन मुल्कों की इकॉनमी ख़राब हो रही है, और ख़ासतौर पर अमेरिका में मुलाजमतों को नुकसान पहुँच रहा है। तो सदर ट्रंप उस स्टील पे सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, लेकिन इससे नतीजा बहुत मनफी भी हो सकता है बहुत से मुल्कों की मईशत पे, और जर्मनी को इस मामले में ख़ास तौर पे बहुत से खदशात हैं। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कल जो दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई उसमें कम से कम दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे की आंख में आंख डाल के बात की, which gave a positive message. Louise, if you can briefly let us know what are the planned activities for today. Well, President Trump has meetings with the leaders of Mexico, Great Britain, and of course Russia. That's the main issue, the main topic on his agenda is that meeting with President Vladimir Putin. And so the two have already seen each other, shaken hands just before lunch. They're going into a bilateral meeting on the sidelines of the summit. Mr. Trump expected to raise the issues of Syria, possibly Ukraine, and possibly as well, we're not sure, but it's up to him to decide. According to the White House, he is going to raise whatever issue he sees necessary, but that may include the allegations that Russia may have meddled in U.S. elections. All right, thank you very much, Louise, for this update from Hamburg, Germany. और यहाँ अपने नाजरीन को हम बताते चलें कि आज के दिन में सदर ट्रंप मेक्सिको के सदर और रूस के सदर दोनों से मुलाकात करेंगे, और रूस के सदर से मुलाकात पे पूरी दुनिया की ही नज़रें हैं। इसमें बहुत से इश्यूज़ ज़ेर बहस आ सकते हैं, उसमें सीरिया का मसला, उसमें यूक्रेन का मसला शामिल है, और हो सकता है कि डोमेस्टिक लेवल पे भी जो ये इशू चल रहा है कि अमेरिका के इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत का, हो सकता है कि वो भी ज़ेर बहस आए। और G20 इजलास में शिरकत से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड के तारीखी कर्जेंसी स्क्वायर में अवाम से खिताब किया। इसकी हाइलाइट्स से देखते हैं। पोलैंड ने सदर ट्रंप को वालेहाना इस्तकबाल का यकीन दिलाया था, और वहाँ मौजूद हजूम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल करके अपना वादा पूरा कर दिखाया। वो वारसा बगावत की यादगार के सामने खिताब कर रहे थे, और सदर ट्रंप ने भी अपने मेज़बानों की पजीराई का भरपूर जवाब दिया। ये हीरोज हमें याद दिलाते हैं कि मगरिब को मुहब्बे वतन लोगों ने अपना खून देकर बचाया था, और हर नस्ल को इसे बचाने के लिए अपना किरदार अदा करने खड़ा होना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि जदीद दौर में क्या मगरिब अपनी बका चाहता है। हम ऐसे लोगों को हमेशा खुशामदीद कहेंगे जो हमारी इक़दार और हमारे लोगों से मोहब्बत करते हैं। हमारे बॉर्डर्स किसी किस्म के भी दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के लिए बंद हैं। और हजारों पर मुश्तमिल हुजूम ने अपनी रजामंदी का इजहार पुरजोश तरीके से किया। बहुत से पोलिश लोग सदर ट्रंप के मुसलमान मुल्कों से सफरी पाबंदी की हिमायत करते हैं और यूरोपीय कोटे के खिलाफ है, जिसके तहत पोलैंड मुसलमान पनाहगुज़ीनों को लेने का पाबंद है। हम रूस को खबरदार करते हैं कि यूक्रेन और दूसरे ममालिक में मुखालिफ हुकूमतों की हमायत से बाज रहे, मसलन शाम और ईरान। उन्होंने पोलैंड की नेटो के दिफाई खर्चे का हदफ मुकर्रर करने पर तारीफ की। पोलैंड को अमरीकी माया गैस की सप्लाई बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई, और यूं उनका नाम लेकर झूमता हुआ हुजूम सदर ट्रंप के यूरोप में पहले अहम खिताब की कामयाबी की गवाही देता नजर आया कि उनका खिताब उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रहा। और अब वो जर्मनी के शहर हैम्बर्ग पहुंच चुके हैं, जहां शायद G20 में उनका इस्तकबाल इतना गर्मजोश ना रहे। हेनरी रिचवेल के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। सदर ट्रंप का पोलैंड में तो बेहद गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, लेकिन हैम्बर्ग में उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो ये G20 इजलास सदर ट्रंप और दीगर लीडर्स के लिए कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है, इसी पे हम बात करेंगे स्टिम्सन सेंटर के नेट ओल्सन से, जो आज हमारे मेहमान हैं। नेट, वेलकम टू व्यू 360। लेट्स स्टार्ट विद दिस, हु आर प्रेसिडेंट ट्रंप्स फ्रेंड्स एट G20? Well, I think he's searching high and low for allies on a number of issues, and he's going to have a difficult time finding them on climate in particular. It looks like he might just be able to cobble together a handful of other countries that can sort of stymie a more concerted effort of other G20 countries against him. So in particular, it's been reported that Saudi Arabia, Indonesia,
and Russia actually might join the U.S. in dissenting from a more robust statement on climate and the Paris Accord especially. All right. So सदर ट्रंप के लिए कुछ मुश्किल होगा आज के दिन G20 इजलास में अपने लिए एलाइज, अपने लिए हलीफ तलाश करना, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे इत्तेफाक राय भी मुमकिन है। और जहाँ तक इख्तलाफ राय की बात है तो वो तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है जिस पे वेस्टर्न यूरोपियन लीडर्स सदर ट्रंप से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और रूस वो मुल्क हो सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से किसी मज़ीद सख्त इक़दामात की नफ़ी करने में सदर ट्रंप का साथ दें। You talked about Russia as a possible ally on climate change. President Trump's meeting with President Putin is what all eyes are on. Sure. What should happen in this meeting? We had a guest recently who said that President Trump should just drink a cup of tea and listen to President Putin. What are some of the common issues that they can agree on and have a pleasant meeting? Well, how pleasant it's going to be is really open to question, and it's been a tightly guarded secret just what exactly the agenda will be. To the extent that they do go beyond having a cup of tea and go into substance, I think some of the issues that they are likely to tackle include the situation in Syria, the situation in Ukraine and Crimea, and the big wild card, of course, that everyone is speculating on is whether President Trump will in some way broach the issue of Russian interference in the U.S. election in 2016. Do you expect this meeting to be as productive as others would hope for? Or do you think it's going to be mostly just symbolic in the end? I think it will probably be a first step and if it were a largely symbolic meeting, in other words, a constructive symbolic meeting, that would be on balance a good thing. So even if we don't come out with concrete deliverables or announcements, that itself will be progress. तो अगर अलामती तौर पे भी ये मुलाकात मस्बत रहती है तो वो अपने अंदर एक अच्छी पेशरफ्त होगी। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इससे बहुत ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट किस्म की डिक्लेरेशन सामने आएंगी, लेकिन कम अज़ कम दोनों सुदूर अगर मिल लेते हैं एक दूसरे से तो ये अपने अंदर एक पेशरफ्त है। President Trump also yesterday in Poland talked about defending Western values, but many would argue that his contentious relationship with the press and then travel restrictions, his protectionist economic agenda, those may not be in line with Western values. So at this point, how can he make particularly Western European leaders believe that there still is a lot common between the US and them? He has his work cut out for him. Even in the immediate aftermath of the speech in Poland yesterday, there was widespread criticism of the apparent disconnect between the so-called Western values that President Trump presumed to champion and the rest of, or the kind of fuller substance of his policy agenda. He had a largely sympathetic audience in Poland. I think that it was a deliberate effort to stage that speech in Poland for that reason. He's going to have a tougher audience in Hamburg. पोलैंड की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे तो ये खिताब बहुत सोच समझ के रखा गया था क्योंकि पोलैंड की क़यादत की पॉलिसीज़ बहुत हद तक सदर ट्रंप की पॉलिसी से मिलती जुलती हैं, लेकिन जहाँ तक मगरबी यूरोप के साथ एलाइज तलाश करने की और उनको ये यकीन दिलाने की बात है कि मगरबी अक़दार जहाँ तक मगरबी अक़दार की बात है वहाँ वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के दरमियान अभी बहुत कुछ मुश्तरक है, तो वो यकीन दहानी कराना सदर के लिए इस मरतबा थोड़ा मुश्किल होगा। What would make this G20 a successful summit? Well, given the sort of tumultuous circumstances surrounding the summit this year, I would say any semblance of normalcy in the outcome would be a positive thing. Again, I'm not sure we're going to get that. From the perspective of, say, Chancellor Merkel hosting the summit this year, a largely united, say, 19 G20 members united in the communiques that emerged from the summit would be actually a positive thing. In other words, sort of holding the guard and keeping a consolidated sort of position on most issues where there is widespread disagreement with the United States. From the U.S. perspective, it's sad to say that, but that is where we are right now. तो नेट की राय में अगर ये समिट सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही ख़त्म हो जाता है तो वो अपने अंदर एक कामयाबी होगी, और अगर इसके अख्ताम पे तमाम ममालिक कोई मुश्तरका एलामिया जारी कर देते हैं तो वो भी एक कामयाबी होगी। लेकिन उनको ये अफसोस है कि अमेरिका के पर्सपेक्टिव से इस वक्त सिर्फ ये इतनी कह लीजिए कि लिमिटेड सी बेस लाइन जो है वही एक कामयाबी करार दी जाएगी। तो ये तो था G20 समिट के हवाले से हमारा एक राउंड अप। विल कंटिन्यू द शो विद साकिब नाउ।
और इस्लामाबाद में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कौमी असम्बली में मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी गई है। आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर तफसीली रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें, इंटरेस्टिंग फीचर्स और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। और G20 समिट पर तो सभी की नजरें हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और क्या कुछ हो रहा है, देखते हैं उसकी एक झलक वर्ल्ड व्यू में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि नस्ली बुनियाद पर तुर्की और यूनान में मुनक्किसम कब्रस के इत्तेहाद के लिए 2 साल से जारी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की नाकामी की वजह यूनान की जानिब से इलाका तुर्क फौज से खाली करवाने के नाकाबिले कबूल मुतालबे को करार दिया। चीन का कहना है कि वो अमरीका की जानिब से परवाज की आज़ादी को बहाना बनाकर चीन की सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की शदीद मुखालिफत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान अमरीकी जंगी तैयारों की जनूबी चीन की समंदरी हदूद पर परवाज के बाद सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा में 120 ममालिक की रजामंदी से तैयार किए जाने वाले एटमी हथियारों पर पाबंदी के बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर आज दस्तखत किए जा रहे हैं। अमरीका और नेटो ममालिक समेत एटमी हथियार रखने वाले तमाम मुल्क इसका बाइकॉट कर रहे हैं। स्पेन में सालाना पैम्पलोना फेस्टिवल में बैलों के आगे दौड़ने वाले अफराद में से 3 बैल के सींग लगने से शदीद जख्मी हो गए। सिर्फ 3 मिनट तक जारी रहने वाली इस दौड़ में कई शुरका को मामूली चोटों पर फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। इराक के शहर मूसल का कब्ज़ा दाइश से छुड़ाने की लड़ाई अपने आखिरी मराहिल में है, जिसमें इराकी फोर्सेस को अमरीकी फ़ौज की मदद हासिल है। शहर से पनाह की तलाश में निकलने वालों की बहुत सी दर्दनाक कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की कुर्द सर्विस के कावा उमर ने लड़ाई के नतीजे में बेघर होने वाले कुछ लोगों से बात की। आइए देखते हैं। मूसल में इराकी फ़ौज के एक चेक पॉइंट पर रुकने वाले इन बच्चों का बाप एक मार्टर हमले में हलाक हो चुका है। उनकी माँ कहाँ है, ये बच्चे नहीं जानते। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 6 साल है और ये रो रो कर कह रही है कि उन्हें खुदा के लिए यहाँ से ना ले जाएं, क्योंकि उनकी माँ अभी तक नहीं आई। वो कह रही हैं कि उनकी माँ उनके पीछे ही थी। बाद में आने वाले लोगों ने उन्हें बताया कि वो आ रही हैं, लेकिन अब तक नहीं आए। इस बच्चे का भी कहना है कि उनकी माँ उनके साथ ही थी। वो कह रहा है कि एक गोले का शेल उन्हें लगा। उसी वक्त दाइश के एक रुकन ने उन पर गोली चलाई। वो सब मुख्तलिफ समतों में भागने लगे और उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ कहाँ है। यहाँ मौजूद इन 8 बच्चों में से 5 बहन भाई हैं और बाकी उनके कजन्स हैं। उनके कजन्स के वालिद भी शहर में होने वाली गोलाबारी में हलाक हो चुके हैं। मूसल के शहरियों को इंतहाई बेसरो सामानी की हालत में यहाँ से निकलना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें इत्मीनान है। बिल्कुल, और हम ये रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें हमने कुछ उन लोगों से भी बात की जो शहर से निकले हैं, और उनका ये कहना है कि वो बेघर हो गए, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होगी, लेकिन उनकी शुक्र है कि जान बच गई है। और इस बारे में मज़ीद रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू साकिब। और G20 का ज़बरदस्त कह लीजिए कि एनालिसिस हमें हमारे आज के गेस्ट नेट ओल्सन ने दिया, लेकिन G20 के अलावा जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो उसके लिए CPEC का मंसूबा इस वक्त लाइमलाइट में है। वहाँ पे चीन के साथ उसके ताल्लुकात, और इस मंसूबे के साथ साथ पाकिस्तान में चीनी ज़ुबान सीखने के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। कई निजी स्कूल चीन में बोली जाने वाली मैंडरिन ज़ुबान को निसाब में शामिल कर चुके हैं, और उनका कहना है साकिब कि चीनी सकाफत और ज़ुबान इस वक्त आजकल वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, इसके बारे में आ गई। तो मज़ीद तफसीलात हमें दे रहे हैं इस्लामाबाद से नासिर महमूद। इस्लामाबाद के एक निजी स्कूल में ये बच्चे खुशहाली के उस ख्वाब की ताबीर से मुस्तफीद होने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जो चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी जैसे अरबों डॉलर के मंसूबे से इस खित्ते में वकूफ़ पज़ीर होने की उम्मीद है। गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान में मुकीम एलिस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं और 5वीं से 7वीं जमात के बच्चों को चीनी ज़बान पढ़ना लिखना सिखा रही हैं। ये बहुत अच्छे हैं। ये चाइनीज सीखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। चीनी ज़बान के हुरूफ बहुत मुश्किल हैं। तलबा को शुरू में उन्हें लिखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। पाकिस्तान में इक्तसादी राहदारी मंसूबे से जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उनके तनाजुर में एलिस समझती हैं कि बच्चों के लिए ये ज़बान सीखना बहुत अहम है।
Pak-China economic corridor is happening in Pakistan. چین پاکستان اقتصادی راہداری یہاں بن رہی ہے. بہت سی چینی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں. انہیں مقامی کارکنان چاہیے ہوں گے. میرا خیال ہے پاکستانیوں کو چینی زبان اور ثقافت کے بارے میں سیکھنا چاہیے تاکہ وہ چینی لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں. And they can work better. 我叫沈怡，我是巴基斯坦人，我喜欢中国，中华友谊万岁。 نجی شعبے میں تعلیمی اداروں کے ایک بڑے نیٹ ورک کے روح رواں فیصل مشتاق کے نزدیک بدلتے ہوئے دور سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو چینی زبان اور ثقافت سے آگاہی دی جائے. ریجنل کنیکٹیوٹی کو فروغ دینے کے لیے انگلش کے بعد وچ از دا لارج یونیورسل لینگویج، مینڈرن از اندر یونیورسل لینگویج. یہ فیوچر کرنسی ہے، یہ ایک اکنامک ٹریڈ کی کرنسی ہے. سو جب آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی ایک آپ کی کنیکٹیوٹی ہے، دوسرا آپ کے نیبرہڈ ہیں، تیسری آپ کی مثالی دوستی ہے دنیا کے اندر، اور یہ ایک گلوبل اکنامک کرنسی ہے، تو اس ساری چیز کو جب آپ نصاب کے ساتھ کنیکٹ کریں اٹ ایکولز ٹو اپرچونٹی. پاکستانی اسکولوں میں سرکاری سطح پر تو نہیں لیکن نجی اسکولوں میں چینی زبان کو بطور مضمون پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ چینی ثقافت اور دیگر شعبوں سے بھی لوگوں کو روشناس کروانے کے لیے کام ہو رہا ہے، جیسے کہ بچوں کو تائی چی کے مخصوص چائنیز مارشل آرٹس کی تربیت بھی دی جا رہی ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. اور پروگرام کے آخر میں ہم لائے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ مزیدار خبریں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. اسپائڈر مین بننے کا خواب تو بہت سے بچے دیکھتے ہیں، لیکن 21 سالہ ٹام ہالینڈ کا یہ خواب آخر سچ بھی ہونے جا رہا ہے. ہالینڈ اسپائڈر مین ہوم کمنگ میں مرکزی کردار ادا کریں گے. I've been playing him in my room since I was 5, you know, so the fact that I get to wear the real costume is amazing, and it's every time I put it on I have to pinch myself. اس سے پہلے ٹوبی میگوائر اور اینڈرو گارفیلڈ اس سپر ہیرو کا کردار نبھا چکے ہیں. کیا ہالینڈ اسپائڈر مین کے فینس کو اپنے جال میں پھنسا پائیں گے؟ برٹش سنگر اڈیل کے فینس کو اس ہفتے ایک بری خبر ملی. ڈاکٹرز کے مطابق کئی گرامی ایوارڈز جیتنے والی سنگر کی ووکل کارڈز بہت خراب حالت میں ہیں. اڈیل کو لندن میں اپنے 2 سولڈ آؤٹ شوز کینسل کرنے پڑے اور وہ نہیں جانتی کہ دوبارہ وہ کب کانسرٹ کر پائیں گی. وی ول سورلی مس یو اڈیل. ڈسپیکیبل می سیریز کی نئی پیشکش ڈسپیکیبل می 3 نے بھی باکس آفس پر پہلی بازی مار لی ہے. $7.5 کروڑ کی دھماکے دار اوپننگ کے ساتھ اس منن مووی نے اپنے فینس کو 4 جولائی کے لانگ ویکینڈ پہ خوب انٹرٹین کیا. اب تک یہ فلم تقریباً دنیا بھر میں 24 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے. لگتا ہے اٹس ڈیفینیٹلی اے ون ان اے منن مووی. سنگر پرنس اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کے فن کا جادو اب بھی میوزک فینس پر چھایا ہوا ہے. پرنس اور دا ریولوشن کا مشہور گانا پرپل رین جو 1984 میں ریلیز ہوا تھا، ان دنوں بل بورڈ 200 چارٹس میں 4تھے نمبر پر ہے. انٹرٹینمنٹ کمپنی وارنر برادرز نے پرپل رین البم دوبارہ ریلیز کی ہے، جس میں کچھ ایسے گانے اور ویڈیوز بھی شامل ہیں جو پہلے کبھی سامنے نہیں آئے. شوچی جین، اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. اب پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.